السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 13۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا جب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کپل آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو آگے۔ زیام شاہ کے سینے کے ساتھ لگی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی وہ انتہائی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے بخوبی وہ منظر دیکھا تھا جب زیام نے سوئچ بورڈ سے لائٹس کو آن کیا۔ یہ دیکھ وہ بجلی کی رفتار سے اس سے دور ہوئی۔ یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا۔ نورے اپنی ناک کے نتھوں کو پھلاتی اسے گھورنے لگی۔ اس کا اشارہ صاف سوئچ بورڈ کی جانب تھا۔ میں جوک سنا رہی ہوں جو آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنی ڈر گئی تھی، بھلا ایسے کوئی کرتا ہے؟ نورے نے زیام کو دیکھا جو مدھمزہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کہا تھا نا تم دوڑتی ہوئی میری باہوں میں آؤ گی۔ نورے کا بازو جھکتے وہ کھینچتے اسے اپنے گلے اپنے ساتھ لگایا جبکہ نورے نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ یہ سب چیٹنگ ہے، آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ خود کو چھڑواتی وہ زیام سے دور ہوئی۔ اب مانو گی تم مجھے اپنا شوہر؟ نورے کے قریب ہوتے دل نشین لہجے میں بولتے زیام شاہ نے اس کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو نورے ایک پل کے لیے شل ہوئی۔ تمہیں بولا تھا مکر مت جانا، اپنی مرضی سے تم میری باہوں میں دوڑتی ہوئی آئی ہو، اب راہ فرار کا تو سوچنا بھی مت۔ نورے کو ایک ہی جست میں اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگاتے زیام نے اس کے بدن سے آتی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اچھے سے اسے محسوس کیا۔ اب کی بار نورے بغیر مزاحمت کیے اس کے سینے کے ساتھ لگی رہی۔ آخر اپنے بولے گئے الفاظ ہی اس پر بھاری پڑ گئے تھے۔ اب مزاحمت کا فائدہ؟ اس نے خود ہی تو بولا تھا، پھر کترانا کیسا؟ باران تالیہ کو ولا لے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بغیر کچھ بولے اس نے تالیہ کا بازو چیک کیا جہاں چوٹ کا تو کوئی نشان نہیں تھا، بس ہلکی سی سوزش تھی۔ تالیہ اسے مخاطب کر رہی تھی مگر باران کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور نورے کو اپنے کمرے میں بھیج دیا جو ابھی کھانا بنا کر ہی فری ہوئی تھی۔ آریان اور ہانم بھی گھر آ چکے تھے جبکہ ہانم بھی کچن میں اپنا تھوڑا سا کام مکمل کر کے تالیہ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کھانا سارا نورے نے بنایا تھا اور ہانم اس کی مدد کے لیے صرف سلاد کاٹ رہی تھی۔ کچھ وقت بعد باران خانزادہ، آریان پاشا اور زیام شاہ باہر ہال میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا ہوا تو تالیہ کو یہیں لے آیا، میرے پاس ایک زبردست پلان ہے اس کا پردہ فاش کرنے کا۔ آریان سپاٹ لہجے میں بولا تو باران اور زیام اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا پلان ہے؟ باران نے ہنوز انداز میں کہا۔ تھوڑا بہت غصہ اس کا ان سے باتیں کر کے ہی ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ کا موبائل اور بیگ چیک کرنا ہے تو نے باران، آریان نے کچھ سوچتے ہوئے حکمیہ کہا تو باران نے ایبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ آریان تو جانتا ہے اگر یہ بات سچ نکلی تو میں نہیں سہن کر پاؤں گا، اس لیے تو یہ کام مجھ پر نہ ڈال۔ باران بیزاری سے بولا تو آریان نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ تو صاف لفظوں میں انکار کر رہا ہے؟ یار آریان تو بات کو سمجھ، میں اس کی اس طرح سے جاسوسی نہیں کر سکتا۔ ہاں جب پیار میں اس کی جاسوسی کر رہا تھا تب تو تجھے موت نہیں پڑ رہی تھی، اور اب جب دوست کو ضرورت ہے تو تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آریان مانی خیز تنزیہ طور پر بولا تو باران نے اپنے لب بھیجے۔ یار تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ پیار میں جاسوسی ہضم ہو رہی تھی مجھے، مگر شک کی بنیاد پر مجھ سے جاسوسی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر تو نہیں کرے گا تو میں کر لوں گا۔ جیلسی تو نہیں ہوگی؟ مطلب تیری بندی ہے، تجھ سے اجازت ضروری ہے؟ آریان نے پوچھنا ضروری سمجھا جبکہ زیام شاہ خاموش بیٹھا ان کی نوک جھونک سن رہا تھا۔ نہیں ایک بیگ ہی تو چیک کرنا ہے، پھر پوچھ کیوں رہا ہے تو؟ باران نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو آریان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا جیسے تو جنونی انداز میں اسے پیٹ کر آیا ہے، کہیں مجھے ہی نہ لگا دے، اس سے اجازت ضروری ہے۔ آریان فارمل لہجے میں بولا تو زیام شاہ نے کہا لگایا جبکہ باران نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ اچھا مذاق کر رہے ہو، غصہ مت کر۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، غصہ مت کرنا۔ یہ بتا وہ کیمرہ تو نے بنا لیا جس سے ہم نے کرائم لیڈی کو ثبوت کے ساتھ پکڑنا ہے؟ آریان کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں بنا لیا، بس تھوڑا کام رہتا ہے، آج رات مکمل کر لوں گا، پھر تو کل اپنے آپریشن میں اس کا استعمال کر لینا۔ اب اس کیمرے کے ذریعے کل ہونا تھا کرائم لیڈی کا پردہ فاش جسے دیکھ ان تینوں کے ہی ہوش اڑنے والے تھے۔
कुछ वक्त बाद ही वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। नूरे टेबल को खानों से सजा रही थी। तालिया का रुकने का कोई इरादा नहीं था, मगर नूरे की वजह से रुक गई थी। सभी टेबल पर मौजूद थे सिवाय आर्यन पाशा के, जिसे ज़ियाम और बारान के सिवा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। खाने के दौरान भी बारान की मुसलसल नज़र तालिया पर टिकी हुई थी। तालिया अपना बैग अपने साथ साथ रख रही थी। यही बात तो आर्यन को हजम नहीं हो रही थी। अब भी वो कुर्सी पर बैठी अपना बैग नीचे फर्श पर रख गई, क्योंकि उसका इरादा अब सीधा घर जाने का था, और टेबल पर नूरे ने जगह ही कहाँ छोड़ी थी, इसलिए उसने अपना बैग ज़मीन पर रख दिया। टेबल के नीचे छुपा आर्यन पाशा, जिसका इरादा तालिया के बैग और मोबाइल की तलाशी लेने का था। हानम आर्यन से नाराज़ थी, इसलिए उसने भी आर्यन का पूछना ज़रूरी ना समझा। नूरे, तुमने तालिया से बात की? ज़ियाम ने सरगोशी नुमा उसकी जानिब झुकते कहा, जो खुद खाने के साथ साथ अशी को फीडर भी पिला रही थी। नहीं, अभी नहीं पूछा। नूरे भी जवाबन धीमी आवाज़ में बोली। फिर कब पूछोगी, जब वो चली जाएगी? ज़ियाम ने मज़ाहिया और तंज़िया कहा, तो नूरे ने उसे घूरा। मैं पूछ लूँगी अपने तरीके से, बल्कि उसे विला में रखवा भी लूँगी। आप चुप करके खाना खाएं। नूरे का अंदाज साफ डपटने वाला था, तो ज़ियाम की ज़बान को उसी वक्त कल्फ लगी। टेबल के नीचे मौजूद आर्यन ने उसका बैग तो चेक कर लिया था, मगर मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ था। वो चाहता तो पासवर्ड को तोड़ भी सकता था, मगर ऐसा करने से तालिया को पता चल जाना था, जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। सलाद तो कोई ले ही नहीं रहा। ज़ियाम बारान, सलाद भी लो ना, मैंने खुद बनाया है। हानम ने सलाद की प्लेट देखी, जो इश्तिहार नुमा सजी हुई थी। कुर्सी से उठकर वो सलाद की प्लेट आगे उनकी जानिब कर रही थी, जब उसकी प्लेट में मौजूद चम्मच नीचे गिर गया। प्लेट को उनकी जानिब खसकाती हुई टेबल के नीचे झुकने लगी। हानम, रहने दो, नया चम्मच ले लो, ज़ियाम ने कहा, जबकि बारान ने ज़ियाम को देखा जैसे कहना चाह रहा हो अब क्या करे। बगैर उनकी सुनती हानम चम्मच उठाने के लिए नीचे की जानिब झुक गई, लेकिन जैसे ही वो नीचे को हुई, सीधी नज़र उसकी आर्यन पाशा से टकराई, जो एक ही पल में तालिया का बैग खुद से दूर कर चुका था। हानम की आंखें हैरत से फैली जब आर्यन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से वॉर्न किया। आर्यन टेबल के नीचे क्या कर रहा था? उसकी समझ से बलातिर था। उसे लगा था आर्यन तो अपने रूम में होगा। जल्दी से चम्मच उठाती वो उसी लम्हे ऊपर की जानिब होती सही होकर बैठी। दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया, जबकि ज़ियाम और बारान ने हानम की जानिब देखा, जो थोड़ी हैरान नजर आ रही थी। अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करते उसके जहन में एक ज़बरदस्त आइडिया आ चुका था। ओह, मेरा पानी गंदा हो गया। हानम ने जानबूझकर पानी में कुछ डाला। ग्लास फारिग करने के लिए यही फेंक देती हूँ, बाद में साफ कर लूँगी। यही सही मौका था हानम के पास आर्यन से बदला लेने का, वो ना जाने नहीं दे जिसे वो जाने नहीं दे सकती थी। फिर अगले ही लम्हे उसने पानी से भरा ग्लास थोड़ा नीचे ले जाकर सीधा आर्यन के मुंह पर फेंका। उसकी इस हरकत पर ज़ियाम और बहरान का कहकहा बमुश्किल कंट्रोल हुआ। एकदम से आर्यन के मुंह पर पानी का ग्लास पड़ा तो एक पल को वो शल ही हो गया। हानम की इस हरकत पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सिर्फ वो जब्त करके ही रह गया। जबकि गुस्से में आर्यन ने हानम की थाई पर हाथ रखा, तो उसे अचानक से गुदगुदी हुई। उसी वक्त उसके जहन में ख्याल आया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एहसास के तौर पर इस बार हानम ने अपना झुमका नीचे गिराया। फिर उसे पकड़ने के लिए वो नीचे झुकी, और इस दफ़ा सही होकर नीचे बैठी। पहली नज़र ही आर्यन की सख्त घूरती हुई नज़रों पर पड़ी, जबकि आर्यन ने उसका बाजू खींचकर उसे अपनी जानिब ढकेला। उसके करीब होते हानम ने माज़रत तलब नज़रों से उसे देखा। फिर अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर उसने आर्यन के भीगे हुए चेहरे को साफ करने के लिए हल्का हल्का दुपट्टा रगड़ा। इस दौरान इन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे का तवाफ कर रही थी। हानम को इतने प्यार से हाथ चलाते देख आर्यन एक पल को मसरूर हुआ। उसकी शर्ट के ऊपर वाले दो बटन खुले हुए थे, जिसे देख हानम ने अपने दुपट्टे से उसका भीगा चेहरा और सीना खुश कर दिया। इससे पहले वो उससे दूर होती, उठकर ऊपर जाती, आर्यन ने उसी वक्त उसे मजीद खुद में भींचा, इतना कि अब बआसानी वो उसके साथ टकरा रही थी। आर्यन की बेबाक नज़र उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई। इससे पहले आर्यन को गुस्ताखी करता न जाने क्या सोचकर हानम ने अपने गुलाबी नर्म होठ आर्यन की गाल पर रखकर मसले, जिस वजह से एक साथ उन दोनों की धड़कनें मुंतशिर हुई। हानम, क्या कर रही हो? नीचे एक झुमका ही तो गिरा है। नूरे ने उसे आवाज़ लगाई। गोद में मिशी था, वरना वो खुद झुककर देख लेती। एकदम से हड़बड़ाती हुई वो आर्यन से दूर हुई। उसकी राह फरार के रास्ते बंद करते आर्यन ने जानबूझकर अपनी गिरफ्त उस पर तेज की। हानम ऊपर ना आई तो बारान ने जोर से एक टांग आर्यन को रसीद की। वो जानता था आर्यन ही उसे ऊपर नहीं आने दे रहा होगा। बारान की जोरदार टांग पड़ते ही वो हानम से दूर हुआ, और हानम जल्दी से उठी। वो काफ़ी आगे चला गया था। ढूंढ रही थी मैं। हानम की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। क्या बोलना था उसे कुछ समझ ना आया। उसके चेहरे की सुर्खी देखकर ज़ियाम और बारान ने ज़ुबानी अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखा।
सभी खाना खाकर फ्री हो चुके थे। तालिया घर जाना चाहती थी मगर नूरे उसे बहलाकर अपने कमरे में ले आई थी। हानम भी नूरे के कमरे में मौजूद थी। तालिया मान जाओ ना, देखो मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, तुम मेरी हर बात मानती हो ना। निशी को सुलाने के बाद वो अब दोनों मिलकर तालिया को विला में रहने के लिए राजी कर रही थी, जो फिलहाल बाइबल के लिए सोच सोच कर परेशान हो रही थी। नूरे ये थोड़ा मुश्किल है, तुम जानती भी हो मुझसे नहीं रहा जाता किसी के घर। तालिया उलझन का शिकार हुई जबकि रीम हानम उनकी बातें सुनने के साथ साथ मोबाइल में जेरी से गुफ्तगू भी कर रही थी। तालिया सिर्फ एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम अपने फ्लैट में चली जाना। ज़ियाम ने उसे सिर्फ एक हफ्ते का ही कहा था। तुम तो जानती हो आज कल मेरे काम का बर्डन बढ़ गया है, ऐसे में नूरे घर अकेली होगी। अपनी डरपोक दोस्त को तो तुम जानती ही हो। फिर तुम्हारे ऑफिस जाने का तो कोई मसला भी नहीं है, तुम ना भी जाओ तुम्हारा ऑफिस से भी चल रहा होता है। हारम ने उसे कायल करना चाहा तो तालिया ने सोचने वाले अंदाज में उन दोनों को देखा। प्लीज़ मान जाओ ना तालिया, सिर्फ एक हफ्ता ही तो है। नूरे ने बेचारगी वाला मासूम मुंह बनाया तो तालिया को तरस आ ही गया। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, इससे ऊपर एक दिन भी नहीं। तालिया ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया तो नूरे खुशी से उसके गले लग गई। नूरे ज़ियाम सही रहता है ना तुम्हारे साथ? तालिया ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम सही पूछ रही हो, बहुत अच्छे रहते हैं दोनों एक साथ, हानम ने तंजिया शरारत से कहा। अच्छा ऐसी बात है, लगता है हमारी मासूम दोस्त को प्यार हो रहा है। तालिया ने उसके चेहरे पर आए मोहब्बत के रंगों को देखा जब नूरे खुद को नॉर्मल करने लगी। नहीं तालिया, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा डर है। अगर ज़ियाम को पता चल गया इस हकीकत का तो मैं फिर क्या करूँगी? फिर मैं क्या करूँगी? मुझे डर है कहीं वो मुझसे अशी को दूर ना कर दे, इसलिए मैं चाहती हूँ उसे कुछ पता ना चले। उसे हरगिज़ इल्म नहीं होना चाहिए कि अरशमान और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जो मैंने ज़ियाम से अडॉप्ट किया। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा हक अरशमान पर ज़ियाम का है। नूरे के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाए, जबकि नूरे के पास खड़ा ज़ियाम जो नूरे से तालिया के मुतालिक पूछने आया था। मगर अंदर होती गुफ्तगू सुनकर उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मगर नूरे कब तक ये राज छुपा रहेगा? कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही ना। तालिया, जब तक हो सका मैं छुपाऊंगी। नूरे, अगर वो तुमसे प्यार करने लगा है तो कल को वो पता लगवा लेगा कि किसका बच्चा है। या तुम अब इस सब को एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी ज़ियाम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम उसे बता भी दोगी तो वो तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेगा, बल्कि वो तुम्हारा साथ देगा। तालिया ने भरपूर कोशिश की थी उसे समझाने की, वो भी चाहती थी नूरे सब कुछ भुलाए, अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। लेकिन उसकी बातें सुनकर जो हाल बाहर खड़े ज़ियाम शाह का हो रहा था वो नाकाबिले बयान था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके साथ हो क्या रहा है। ज़ियाम के जहन में अचानक से ख्याल आया जब उसने 2 साल पहले एक लड़की को बच्चा दिया था जो उसे मिला था। उसने सिर्फ मदद की थी, फिर वो वहाँ से चला गया था, ये तक न पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है। और आज जब वो लड़की नूरे निकली तो उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, दिल खुशी से झूल रहा था। आंखें खुशी के पास अश्कबार होने को तैयार थी। ये थोड़ी खुशी नहीं थी जिससे वो प्यार करने लगा था, असल में उसका बच्चा उसका अपना या किसी और का नहीं था। अब नूरे चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाएगी, उसके पास इतना ठोस सबूत जो मौजूद था। खुशी से झूलता हुआ वो भाग कर बारान के कमरे में आया जहाँ बारान और आर्यन उस कैमरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। दौड़कर आता हुआ वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बेड पर चढ़ते ही उछलने लगा। खुशी इस कदर थी कि उसके तो अब पैर ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहा था वो हवाओं में उड़ने लगा हो। उसे बेहद खुशी से पागल होते देख आर्यन और बारान दोनों अपना अपना काम छोड़कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। तुझे कौन सी करंट लग गई है, क्यों बंदर की तरह उछल रहा है? बारान ने उसकी जानिब बढ़ते तंज या शरारत से कहा तो ज़ियाम शाह मज़ीद खुश हुआ। अच्छे से बेड पर उछलते वो मुस्कुराता हुआ बारान के पास जा खड़ा हुआ। तुझे पता है मेरा बच्चा, तुझे पता है मैं उसका बच्चा हूँ। ज़ियाम शाह के होश खोए हुए थे, वो क्या भूल गया था उसे खुद नहीं पता था। तो वो अब आर्यन की जानिब बढ़ा जो उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। आर्यन, तू जानता है मैं 2 साल का बच्चा हूँ। खुशी से झूमते हुए उसने आर्यन को बाजू से थाम कर बताया। वो लोग ज़ियाम शाह के लफ्ज़ों से ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते थे, सही तरह उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैं उसका बच्चा, वो मेरा बाप। इन दोनों को देखते इस बार उसने पागलपन की हद ही कर दी। तो आर्यन और बारान दोनों एक साथ उसकी जानिब बढ़े, उसे हाथों से पकड़े उन्होंने एक जगह खड़ा कर लिया। क्या बक रहा है साले, पहले तू पुरसुकून हो जा, फिर बात बताना, वरना जो तू बता रहा है ना हमने कुछ और मतलब ही निकाल लेना है। अरे छोड़ो मुझे, असल खुशी तो मुझे आज मिली है। ज़ैम ने खुद को छुड़वाना चाहा। तू बाप बन गया है क्या? आर्यन ने उसकी बातों से यही मतलब निकाला। 2 साल पहले ही ज़ियाम की बत्ती सी तो अंदर ही नहीं जा रही थी। लगता है ज़्यादा खुशी मिलने पर तेरा दिमाग फालिज हो गया, इसलिए चल नहीं रहा।
سنو تم لوگ، نورے کا بیٹا ارشمان، تم دونوں کو پتہ ہے وہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ ارشمان نورے کا اور میرا بچہ ہے۔ زیام شاہ کے پرجوش انداز میں بتانے سے وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ ارشمان تیرا بچہ ہے، وہ کیسے؟ بہرحال کنفیوز ہوا تو زیام نے انہیں الف سے لے کر یا تک ساری کہانی سنائی۔ زیام شاہ کی خوشی میں خوش ہوتے وہ کافی دیر اس کے ساتھ خوشی سیلیبریٹ کرتے رہے۔ پھر باران سے وہ چھوٹا سا کیمرہ لیتے، اسے محفوظ طریقے سے اپنی جیب میں ڈالتے۔ آریان اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ 1 بج رہا تھا، یقیناً ہانم سو چکی ہوگی، وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کی سیدھی نظر ہانم پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کو اس کے حواس باساختہ ہوئے۔ وہ اچانک سے اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ سامنے کا منظر کتنا جان لیوا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا آج وہ اپنا سب کچھ اس قاتلانہ پر ہار دے گا۔ آریان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھا، ہانم ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ساڑی پہن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ تذبذب کا شکار ہوا، پھر آریان نے بے باک نظروں سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا، جو اس وقت آسانی سے اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ گولڈن چمکتی ہوئی ساڑی پہننے کی وہ ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انڈین ساڑی میں اسے دیکھ کر آریان کے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگے تھے۔ وہ ساڑی پہن رہی تھی جس وجہ سے اس کی ساڑی کا پلو نیچے گرا فرش کو چھو رہا تھا۔ کرتی ہاف تھی، کرتی کے بازو بھی نہیں تھے، گلا کافی ڈیپ تھا، پیٹ برہنہ ہو رہا تھا۔ ساڑی کا روش پر گرا پلو اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آریان کے دل و دماغ کو قابو کرنے کے لیے ہانم نے اپنے دل فریب سرابے کو اس پر ظاہر کرنے کے لیے اپنی گردن سے دھیرے سے بال ہٹائے، جس کی بدولت اس کی کرتی کی کھلی ڈوری اس کی کمر سے ٹکرانے لگی۔ ایک لمحے کی دیر تھی، آریان اپنے حواس کھونے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل ہانم کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ساڑی نہیں باندھنی آتی تھی، بلکہ اس نے تو آریان کو دیکھ کر اپنی ساڑی کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ارادے تھے اس کے۔ دو ٹوک نظروں سے اس کی گوری پشت کو دیکھتا وہ مزید بے چین ہوتا ہوا اپنے ہولے ہولے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ آریان نے اس کی جانب بڑھتے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے اپنے جذباتوں پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بیوی اس قدر حسین تھی کہ اس کا اتنا سخت پتھر دل وہ اپنے دل ربا سراپے سے پگھلانے لگی۔ اتنی بیہودہ ساڑی کیوں پہنی تم نے؟ اپنے جذباتوں پر مکمل طور پر قابو پاتے آریان نے اپنے تاثرات کو بے حد سنجیدہ کیا۔ اس کی بیوی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، آریان پاشا کو اپنے جذباتوں پر قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بعض دفعہ اس کی خوبصورتی پر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ آپ کے لیے ہی تو پہنی ہے، دل نشین لہجے میں بولتی وہ اسی وقت مڑی تو اچانک سے آریان کی نظر اس کے گلے سے ٹکرائی۔ اب یہ مت کہنا میری نیت آپ پر خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے جلد اس حسین قاتلانہ اداؤں والی لڑکی سے نظریں ہٹا کر تنزیہ بولتے چوٹ کرنا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانم کو اب تک وہ رات یاد آ گئی ہوگی جس رات اس نے بے شرمی کی حد ہی کر دی تھی۔ وہ تو آپ کو دیکھتے ہی ہو جاتی ہے۔ ہانم کا پلو ابھی تک اس کے بازو پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کے انداز نشیلے تھے، جسے دیکھ آریان ایک پل کو ٹھٹکا۔ اسے اس وقت ہانم کے چہرے پر معصومیت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی بے تحاشا نشیلی آنکھیں اسے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہاں آئے میرے پاس اور یہ ساڑی پہنائے مجھے۔ ہانم نے سائیڈ سے ساڑی کے ہک کو پکڑ رکھا تھا اور اپنے بے لگام اس کی جانب بڑھا لیے۔ ہانم رک جاؤ وہیں پر، پاس مت آنا۔ آریان کو ایسا لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑا سا بھی پاس آئی تو اپنا اختیار کھو دے گا، وہ ہانم میں مسرور ہو جائے گا، وہ ساری حدوں کو توڑ بیٹھے گا۔ دور سے کام تھوڑی نہ چلے، پاس تو آنا ہی پڑے گا۔ دل لوٹنے والی اداؤں سے بولتی وہ اس کے دل میں اپنے لفظوں اور نشیلے تاثرات سے پتھر کو پگھلانے کے لیے خنجر کا کام کر رہی تھی۔ یہ ساڑی اتارو اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ۔ آریان کو کوفت ہو رہی تھی اسے اس بیہودہ ساڑی میں دیکھ کر، وجہ صرف اس کے ڈگمگاتے جذبات تھے۔ اگر یہ کام آپ سر انجام دے دے تو۔ مانی خیز سا بولتے آریان کی جانب بڑھتے اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ باقی آریان کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا اس کے جذباتوں سے واقف ہونے کے لیے۔ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آریان نے اس کے بہکے انداز کو دیکھا، وہ آج بھی اس رات والی ہانم لگ رہی تھی، لیکن اس نے تو آج ڈرنک بھی نہیں کی تھی۔ پھر اسے کیا ہو گیا تھا؟ میرے ارادوں پر شک مت کرے، بس میری نیت آپ کو دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ آریان کو دیکھتے ہانم نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا۔ اپنی نیت کو لگام دو ورنہ میری نیت خراب ہو گئی نا تو تم مجھ سے پناہ مانگتی پھرو گی۔ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ خود کو اس قدر مضبوط کر گیا کہ ہانم کے لبوں پر استہزائی سی مسکراہٹ رنگی۔ کرے نا اپنی نیت خراب، روکا کس نے ہے؟ پرکشش نگاہیں آریان کے خوبصورت چہرے پر سجاتی وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ بہت اس نے معصومیت کے تیر چلا لیے تھے، اب وہ بے شرمی کے تیر چلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اللہ اللہ کتنی بے شرم ہو تم ہانم۔
आर्यन ने उसके इरादों को भांपते अपने कानों को हाथ लगाया। बीवी करे तो अल्लाह अल्लाह, कजिन करे तो वल्लाह वल्लाह। लगे हाथ हानम ने भी एक तंज का तीर चला ही दिया था। जेलसी तो उसे बहुत हुई थी जो वो अभी तक नहीं भूली थी। हानम वो सिर्फ मेरी कजिन है, मैं मजीद सफाई नहीं दूंगा। आर्यन एकदम से अटल होकर बोला तो हानम ने ये बात भूल जाने में ही आफियत समझी, क्योंकि अभी इस बात को करना मतलब अपना सर दीवार पर मारने के बराबर था, और फिर इस बात की वजह से आर्यन ने पिघलते पिघलते पत्थर से पत्थर बन जाना था, फिर से पत्थर बन जाना था। और मैं आपकी बीवी हूँ जिसके कुछ हुकूक भी है। जुमानी सा बोलते हुए मजीद आर्यन की जानिब बढ़ी। कौन से हुकूक की बात कर रही हो तुम? उसे आज हानम सरफिरी लग रही थी, जिसके जज्बात शोलों की तरह आर्यन पर गिर रहे थे। वही जो आप सोच रहे हैं। अब वो हर बात ही ज़ुबानी कर रही थी। सफाई से वो बोलना ही नहीं चाहती थी। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें क्या लगता है तुम यूँ सच सवर कर मेरे सामने आओगी और मैं पिघल जाऊंगा? सपाट से अंदाज में एब्रोच काए आर्यन ने करकाटदार नज़रों से उसके दिल फरेब सरापे को घूरते कहा, मुझे लगता नहीं है, ऐसा ही है। न जाने कैसी लचक थी आज हानम के लहजे में। वो ना चाहते हुए भी मदहोश हो रहा था। कब कैसे किस इंसान को किस तरह काबू करना है वो अच्छे से जानती थी। उसके पास सारे हुनर थे। ये सारी तैयारियां आपके लिए ही तो है। आज की रात अपनी बीवी के नाम कर देना। हानम ने उसके सीने पर हाथ रखने चाहे, मगर वो उसी लम्हे हानम से दूर हुआ। एक रात चाहिए ना, चलो आओ फिर अच्छे से तुम्हारे नाम करूं। दफदन आर्यन उससे थोड़ा दूर हुआ, फिर मदहोशी के आलम में उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर उसे रोड करता हुआ अपनी जानिब धकेलता अगले ही लम्हे उसे बाजू से पकड़कर चेंजिंग रूम के दरवाजे के साथ पिन कर गया। इस एक पल में ही हानम के चेहरे पर इतनी खुशी बिखर गई थी कि नाकाबिले बयान थी। वो चाहने लगी थी आर्यन को, उसे मोहब्बत हो गई थी आर्यन से। अब आर्यन का उसके नज़दीक आना उसे खुशी देता था। उसे अब कोई ज़ाती मफाद नहीं रहा था आर्यन से, बल्कि वो सब कुछ भुलाए कतरा कतरा अपने जिस्म में आर्यन की मोहब्बत को उतारने लगी थी। मोहब्बत ने तो शादी की पहली रात ही उसके दिल में दस्तक दे दी थी, जब वो आर्यन की मगनातीसी शख्सियत से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। लेकिन अब उसके सर पर भी आर्यन की मोहब्बत का भूत सवार हो रहा था। वो दिन ब दिन आर्यन की होना चाहती थी। उसे कभी ना कभी तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना ही था। फिर आर्यन पाशा ही क्यों नहीं, जिससे पहली दफ़ा क्राइम लेडी मुतासिर हुई थी। वो जिसकी आज तक कोई पसंद नहीं बना था, उसे आज आर्यन पाशा से मोहब्बत हो गई थी। अपनी बेलगाम आंखों को उसकी बेबाक आंखों में गाड़ते आर्यन ने उसकी कमर पर अपने दहकते हुए हाथ रखते हानम का दिल उछालने की कोशिश की। उसकी नरम नरम कमर पर अब उसकी उंगलियां धंस रही थी। एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा हाथ दरवाजे पर था। आर्यन ने अपनी उंगलियां रक्स के तौर पर उसके पेट पर नचानी शुरू की तो उसी पल हानम की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी। मगर अगले ही लम्हे आर्यन हानम के चेहरे पर झुका। उसकी इतनी सी नज़दीकी की देर थी कि हानम का सांस हलक नहीं अटक गया। दोबारा सांस भी लेना था वो ये तक भूल गई थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते आर्यन ने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाया। दरवाज़ा खुला। फिर आर्यन ने उसे एक ही जिस्म में अंदर की जानिब धक्का देते साथ ही दूसरे लम्हे दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। कहा था ना आर्यन पाशा, जब तक खुद न चाहे बहकता नहीं है। फिर तुम्हारा ये हुस्न भी कोई मानी नहीं रखता। बुलंद आवाज़ में बोलता हुआ अंदर खड़ी हानम के तन बदन में आग लगा गया। आर्यन दरवाज़ा खोले। अच्छा नहीं करती मैं आपके साथ फ्लर्ट, लेकिन प्लीज़ दरवाज़ा तो खोल दे। बेचैन होती हानम अब तरले मिन्नतों पर आ गई तो आर्यन गहरा मुस्कुराया। नहीं नहीं करो फ्लर्ट, रोका किसने है? आर्यन पाशा ना सही दीवारें सही, तुम अपना काम जारी रखो। दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, सुबह ही खुलेगा। मैं सोने लगा हूँ तो शोर मत मचाना प्लीज़। तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ बेड पर आकर लेट गया तो हानम ने जानबूझकर ज़ोर से दरवाज़ा पर अपना हाथ मारा। नूरे की वजह से वो हफ्ता विला में रहने के लिए तैयार हो गई थी। तालिया को ऊपर वाले फ्लोर का कमरा दिया गया था। सिंगल सोफे पर बैठी मुसलसल 22 मिनट से बाइबल का नंबर डायल कर रही थी, जो हर बार उसकी कॉल काट रहा था। बाइबल इससे खफा हो गया था। यही बात तो तालिया को परेशान कर रही थी। आज पहली दफ़ा बाइबल उससे इतना खफा हुआ था सिर्फ बारान खानज़ादा की वजह से। उसे सिर्फ बारान की गलती नज़र आ रही थी। उसे ये नहीं नज़र आ रहा था कि बाइबल ने उसके साथ बदतमीज़ी की, उसे धक्का भी दिया। उसकी मोहब्बत ये क्यों नहीं सोच रही थी? उसकी नफ़रत बारान को ही क्यों कसूरवार ठहरा रही थी? अपनी सोचों में वो इस कदर गर्क थी कि उसे सोचों से आज़ाद करने के लिए बारान खानज़ादा तूफ़ान की तरह उसके कमरे का धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो तालिया का एकदम से बनाया सहर अंगेज़ तसलसल छन्ना से टूटा। क्यों आए हो अब तुम यहाँ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो क्या? बारान खानज़ादा को दरवाजे के पास देखते तालिया भागकर उसके करीब आती उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई।
मैं कितनी बिखर गई हूँ ये देखने आए हो। तालिया का दिमाग फिर से माऊफ होने लगा था। बारान ने संजीदगी से उसे देखते धीरे से उसके हाथ अपने कॉलर से आज़ाद करवाए, फिर उसका बाजू पकड़कर बेड के पास ले आया। तालिया, जो शख्स तुम्हारी इज्जत नहीं करता तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकती हो? बेड पर उसके साथ बैठते नहायत तहम्मुल का मुजाहरा करते बारान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। बारान, मोहब्बत ऐसी ही होती है, मुझ पर क्या गुजरती है वो तुम नहीं महसूस कर सकते। आज पहली बार तालिया की आंखों में आंसू आए थे, जिसे देख बारान खानज़ादा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मोहब्बत ये तो नहीं कि आप अपनी इज्जत नफ्स को ही भूल जाए। बारान का अंदाज समझाने वाला था। दफन तालिया की अश्कबार आंखों से एक मोती टूटकर गिर गया। बारान खानज़ादा ने ज़ोर से अपनी मुट्ठियों को दबोचा। वो किसी और के लिए आंसू ज़ाय करे, ये बारान खानज़ादा को कहाँ मंजूर था। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, मैं मोहब्बत में अव्वल दर्जा ही महबूब को देती हूँ। अपने गाल पर बहते आंसू को बेदर्दी से साफ करते उसने अपनी आंखों को खाली किया। लेकिन तुम महबूब का चुनाव गलत कर बैठी हो। बारान बहरान का दिल चाह रहा था उसे खुद से लगाकर उसे दिलासा दे, उसे हौसला दे, लेकिन जानता था ऐसा करने से वो मज़ीद बदगुमान हो जाएगी। उसकी आंखों में जो बाइबल की नाम की पट्टी बंधी हुई थी, पहले वो खोलनी थी, फिर आगे बढ़ना था। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम अगर तो तुम यहाँ मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तालिया का लहजा अटल और संजीदा था। इस बार उसने अपने आंसू को कहीं अंदर से ही दफन कर लिया था, अपने गम को अंदर ही दबा दिया था। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी जितना उसे बाइबल ने कर दिया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूँ। अगर उसे ज़रा भी तुमसे मोहब्बत होती तो वो पहला मकाम ही तुम्हें इज़्ज़त का देता। तुम्हें पता है एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़लील मोहब्बत ही करवाती है। मैं बस इतना चाहता हूँ सोच समझ कर फैसला लेना, ये ना हो तुम्हें बाद में अपने ही फैसले पर पछताना पड़े। पुरसुकून लहजे में उसे एक एक बात समझाता वो एक आखिरी नज़र उस पर डालता उठ खड़ा हुआ। मेरी बातों पर रकीब समझ कर नहीं, हमराज समझ कर नज़रसानी करना। आगे बढ़ते कदमों से उसने ये आखिरी बात की और जल्द जल्द उससे तन्हा छोड़कर चला गया। उसका चले जाना ही बेहतर था। तालिया के सर पर चढ़ा मोहब्बत का भूत इतनी आसानी से तो नहीं उतरने वाला था। वो कहती थी मैं तकलीफ़ में हूँ, मोहब्बत की तकलीफ़ क्या होती है? कोई उससे पूछे तो क्या वो ये नहीं जानती थी बारान खानज़ादा भी उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा है? क्या उसका दिल नहीं टूट रहा था? क्या उसका दिल नहीं बिखर रहा था? क्या उसे बारान की बिखरी हालत उसका दुख दिखाई नहीं दे रहा था? जो घाव उसने उसके दिल में लगाए, क्या वो उसका अज़ला कर सकेगी? मोहब्बत में इंसान खुदगर्ज़ हो जाता। तालिया भी हो चुकी थी। अपनी मोहब्बत के सिवा उससे किसी और की मोहब्बत नज़र ही कहाँ आती थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और अपने कॉन्टेक्स्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।